So let us start with this interesting subject, Bharatiya Nyaya Sanhita. Okay. Now this particular subject is a new law which has been passed in 2023, and it has replaced the old law, that is Indian Penal Code. Okay. IPC was the law before this. Now this law has been replaced by Bharatiya Nyaya Sanhita. And there are a few differences between both the laws which we'll cover later on. But basically, Bharatiya Nyaya Sanhita is one of the very important criminal laws of our country. Here basically different types of crimes are defined and their punishment is mentioned. Ki what is the punishment, what is the way, what are the criteria to constitute a crime. You should be able to differentiate between kidnapping and abduction. You should be able to differentiate between murder and culpable homicide. You should be able to differentiate between hurt and grievous hurt. इसमें आपको differentiate करते आना चाहिए. Otherwise, what will happen if you are not able to differentiate? Sometimes lot of things that we went to the police station and they did not take the FIR. Why? Because whatever you are complaining, for example, a particular person goes that that person has parked his vehicle in my car, in my parking. मेरे पार्किंग में उसने, अब ये क्राइम नहीं है. दिस प्रॉब्लम हैज टू बी सॉर्टेड आउट बाय द हाउसिंग सोसाइटी. इट इज नॉट अ क्राइम. उस पर्सन ने कब्जा नहीं कर लिया. इट इज नॉट अ, हाँ यू कैन मे से ट्रेसपास किया है, ऐसा आप बोल सकते हो, करेक्ट. पर पुलिस वाले, अब ये हाउसिंग सोसाइटी का मैटर है. सो बेसिकली देयर इज अ बिग डिफरेंस कि आप FIR कब लॉन्च होती है, वेन एवर अ पर्टिकुलर इंसिडेंट कैन क्वालिफाई the criteria given under Bharatiya Nyaya Sanhita, and then only that person, that police official will write an FIR. Otherwise it will not constitute. So before starting Bharatiya Nyaya Sanhita and what are the different types of crimes, we should know what is a crime, because you might be hearing words like offense, crime, tort. Now these are different types of wrongs which are happening in the society, जो गलत हो रहा है, correct? So basically you should be able to define what is a crime. Any kind of wrong which is committed against the society or against the state. With wrong intentions. Obviously. वो आगे जाएंगे, what are the different elements of crime. But any wrongful act done against the society or against the state or both. Okay. Now what Ajmal Kasab did was, it is waging war against the state. उसने, we did not punish him for murder. We punished him, the death penalty was given for waging a war against, obviously, which is a bigger crime, which covered all the killings which he did in that particular incident of 26/11 record. ठीक है? Now, if you see Bharatiya Nyaya Sanhita, which was passed by 2023, why? The reason was that IPC was old, it was passed by the Britishers, and a lot of new crimes had emerged. Okay. Now, if you see Bharatiya Nyaya Sanhita, in that particular law, there is no definition of crime given. They have given definition of types of crime, kidnapping, murder, all types of crime, but they have never defined what is crime. So, ऐसा Bharatiya Nyaya Sanhita में कोई भी crime का definition नहीं दिया गया. ठीक है? Now, we will be dealing with different types of crimes. We will be dealing with different kind of offenses. We will be dealing with punishments. We will be dealing with criminal liability and general principles of criminal responsibility. ये सारी चीज़ें हम इस particular subject में देखेंगे. And see, we should be able to differentiate between moral wrong and social wrong. दोनों अलग चीज़ है. Morally wrong क्या है भाई? आप मॉरली अगर हम बात करें तो झूठ बात करना, किसी को धोखा देना, दैट इज मॉरली आपने ये नहीं करना चाहिए कि भाई मॉरल, देयर आर सर्टेन मॉरल्स व्हिच इज गुड, व्हाट इज बैड. बट सोशल रॉन्ग व्हिच इज पनिशेबल. आप झूठ बोल रहे हो, मेरे पास नोट्स नहीं है. जब भी आपको कोई पूछता है डू यू हैव नोट्स, आपने बोला नहीं मेरे पास नोट्स नहीं है, एंड देन वो कोई क्राइम नहीं है, आप बस नहीं शेयर करना चाहते आपके नोट्स, करेक्ट. बट उसी जगह अगर आप ये बोलोगे कोर्ट में, आप एविडेंस विटनेस की तरह खड़े हो और आपको पूछा जा रहा है और आप झूठ बोल रहे हो ना, दैट इज परजरी. यू आर स्पीकिंग लाइज इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस. तो ये डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए कि कौन से सिचुएशन में आप क्या बिहेव कर रहे हो. ये आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. उसके बाद आई विल गिव यू नोट्स जिसके अंदर डेफिनेशंस मेंशन किए क्राइम के. ब्लैकस्टोन ने कहा
A crime is an act committed or omitted in violation of a public law forbidding or commanding it. कि आपने कोई एक्ट किया जो नहीं करना चाहिए. You commit something which had to be done legally. आपने ऐसा कुछ कर दिया जो लॉ बता रहा है मत करो और आपने कर दिया. That is a crime. या बताया जा रहा है, लॉ बोल रहा है करो, फिर भी आपने नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल, इट इज द लीगल ड्यूटी ऑफ द डॉक्टर टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट. उसकी लीगल ड्यूटी है ना, उसको मेडिसिन देना, खाना देना, ये आपका काम है, ये करना है आपको, आपने नहीं किया तो ये भी, हाँ तो ये भी क्राइम है. और उसी जगह पे अगर ऑब्वियसली मर्डर करना अलाउड ही नहीं है, आपने मर्डर कर दिया, आप ये तो नहीं बोल सकते मुझे पता नहीं. सो बेसिकली ब्लैकस्टोन ने ये बोला, यू कमिटेड एन एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ और यू ओमिटेड एन एक्ट विच हैड टू बी डन बाय लॉ. काम करना था, नहीं किए, और जो नहीं करना था वो कर दिया. सो दैट इज अकॉर्डिंग टू वेरी ओल्ड डेफिनेशन ऑफ क्राइम बाय ब्लैकस्टोन. उसके बाद स्टीफन ने कहा, वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्टीफन, अ क्राइम इज एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ एंड पनिशेबल बाय लॉ. खत्म. फॉरबिडन एंड पनिशेबल बाय लॉ. सिंपल बेसिक डेफिनेशन गिवन बाय स्टीफन. केनी ने कहा, crimes are wrongs whose sanction is punitive and in no way remissible by any private person. कि any crime which is committed is a punishable offense. और कोई प्राइवेट पर्सन उसको नहीं बोल सकता. मतलब अगर सपोज किसी का मर्डर होता है, इफ somebody is killed, और उसके बाद उसके फैमिली या उसके रिलेटिव्स के साथ इनका समझौता हो गया, हाँ ठीक है, ये 10 लाख ले लीजिए, 20 लाख ले लीजिए, मैटर को इधर ही दबा दीजिए, ये होता है. ये अनऑफिशियली, इलीगली, ये सब आपको भी पता है कि भाई ये सब हो रहा है, बट अलाउड नहीं है. दिस इज नॉट, ये प्राइवेट पर्सन की बात नहीं कि हाँ ठीक है मर्डर हो गया, मैनेज कर लेंगे, हाँ सकता, बिकॉज इट इज अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट. द स्टेट हैज टू प्रूव द मर्डर एंड अकॉर्डिंगली दैट पर्सन विल बी पनिश्ड. नो पर्सन कैन टेक बैक द केस. ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई प्राइवेट पर्सन है, जाने दो, ठीक है, ये नहीं कर सकते. नाउ व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ क्राइम? एसेंशियल फीचर्स ऑफ क्राइम. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स इन दैट पर्टिकुलर एक्ट? आप जो कर रहे हो उसमें ऐसा क्या होना चाहिए जिसकी वजह से आप बोलोगे ये क्राइम है. कुछ तो आपने किया, बट वो क्राइम है कि नहीं, तो आपको सर्टेन फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स सेटिस्फाई करने होंगे, एंड देन ओनली इट विल बी टर्म्ड एज अ क्राइम. सबसे पहले ऑब्वियसली द एक्ट, द ह्यूमन कंडक्ट. आइदर यू आर कमिटिंग समथिंग और यू आर ओमिटिंग टू डू समथिंग. एक तो आप कर रहे हो, नहीं तो आप नहीं कर रहे हो. तो ह्यूमन कंडक्ट इज इंपॉर्टेंट. आप बस सोच रहे हो, मैं सोच रहा हूँ कि भैया चलो आप सबको बम से उड़ा दो, मैं सोच रहा हूँ, मैंने कुछ कहा नहीं, मैं आपके साथ हंस के बात कर रहा हूँ, आई एम स्माइलिंग, है ना, पर दिल में लग रहा है सबको गोली मारो. तो मैं सोच सकता हूँ, पर मैंने कुछ किया नहीं, मैंने कोई प्रिपरेशन भी नहीं करी, मैंने बस सोच रहा हूँ. कभी कभी अपने दिमाग में आता है, अभी कोई इंडिविजुअल होता है जो आपको पसंद नहीं आता, पता नहीं क्यों, बट आपको वो पसंद नहीं है, यार हटाओ यार इसको, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं उसको मार देता, या मैं उसको कान के नीचे बजा के देता, वॉट एवर. आपको कभी कभी ये फीलिंग आती है. गाड़ी जब मैं ड्राइव करता हूँ तो मुझे हमेशा फीलिंग आती है, वेन एवर आई ड्राइव, तो टू व्हीलर वाले या ट्रक वाले या कोई भी, ऐसा लगता है इसका उतर के मारो, लिटरली ऐसा फील होता है. पर कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं. अब ये क्राइम नहीं है, बट मैं उतर गया, मैं गया उस ऑटो वाले को पकड़ा, धो डाला, अभी भाई ये क्राइम हो गई, क्योंकि मैंने असॉल्ट किया, मैंने बैटरी करी, मैंने हर्ट किया उसको, है ना. सबसे पहले आता है ह्यूमन कंडक्ट. आइदर यू डू समथिंग और यू डोंट डू समथिंग, फर्स्ट थिंग. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, दैट पर्टिकुलर एक्ट हैज टू बी फॉरबिडन बाय लॉ. ये आप नहीं कर सकते, ये भारतीय न्याय संहिता में मेंशन करना चाहिए. नहीं, वैलेंटाइन डे के दिन उसने मुझे गुलाब का फूल नहीं दिया, क्राइम है. अरे हाँ, समझ सकता हूँ, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, बट FIR कैनॉट बी लॉन्च्ड अगेंस्ट योर बॉयफ्रेंड. नहीं कर सकते. क्राइम है क्या? नहीं है, बट मॉरली सही है गलत है वो आप सोचो. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये फर्क है. तो सेकंड थिंग इज इट हैज टू बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ. देन इट हैज टू बी अ पब्लिक रॉन्ग. मतलब हमारे समाज में इट जस्ट डज नॉट ओनली इफेक्ट अ विक्टिम, इट इफेक्ट्स द होल सोसाइटी ऑल्सो. अभी एक केस हुआ था, आई टेल यू. देयर वाज अ केस वेयर इट वाज अ रेप केस वेयर द गर्ल टुक बैक द केस. उसने पैसे लिए. दिस हैपेंड आउटसाइड द कोर्ट. दे वर इन अ रिलेशनशिप. After that, like shadi did not happen, so the girl filed a rape case against the boy, and she also filed prevention of atrocities against SC/ST Act. कि मुझे जात पे गालियाँ दी. And later on, the family members met her कि भाई, the boy was 22-23 year old, the girl was around 28-30 years old. वो काफ़ी बड़ी भी थी, 6 साल से बड़ी थी लड़के से.
तो हाँ ये केस थी, तो उसको 5 लाख रुपए देके वो मैटर सॉर्ट आउट कर दिया। लड़की को बोला कि आपने ऑलरेडी हमारे बेटे का नाम खराब हो चुका है समाज में, अब शादी तो हो नहीं सकती, क्या करना है। तो पैसे ले लिए उसने और उसने बोल दिया कि भाई आपने, मैं ये सब गुस्से में मैंने किया, मैं केस वापस लेना चाहती हूँ। तो लेडी जज ही थी, उन्होंने बोला आप पे कोई फोर्स किया जा रहा है, आपकी जान को खतरा है, आपके घर वालों को खतरा है, कुछ सब कुछ पूछा, ज़बरदस्ती की गई है। उसने बोला नहीं 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 नहीं, मैं राइटिंग में देती हूँ। फिर भी उस लड़के को बेल नहीं मिली। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि मैं भी यही था कि अभी क्यों नहीं दे रहे हो बेल, अब तो छोड़ दो उसको। तो जो जजमेंट था लेडी जज का, उन्होंने ये कहा कि देखिए भाई, ये रेप एक सोशल क्राइम है। इट इज नॉट ओनली वन विक्टिम, इट इज इम्पैक्टिंग द होल सोसाइटी, इट्स द क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट गिव बेल टू हिम। But the victim is herself denying. एग्जैक्टली दैट वाज माय कंटेंशन एज वेल। उसको बेल नहीं मिली, डायरेक्टली 2 महीने के बाद उसको डिस्चार्ज मिल गया, मतलब ही वाज डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल द ऑफेंसेस, मतलब वो जो चार्ज किया था ना उसको ये सेक्शन में, वो सब सभी में डिस्चार्ज हो गया और उसको छोड़ दिया गया आफ्टर 2 मंथ्स। सो 2 महीने और वो सड़ा जेल में, पर बेल नहीं मिली। तो क्यों? उसका ये कहना था कि अगर मैंने ऐसा बेल ऑर्डर दे दिया तो यही जजमेंट आगे के सारे केसेस में लोग इस्तेमाल करेंगे कि बेल दे दो, बेल दे दो। हाँ, तो क्योंकि ये हम जजमेंट लगाएंगे रेफरेंस करके, देखो इस केस में हुआ था, तो इस केस में भी तो जो विक्टिम है वो बोल रहा है कि मैं केस वापस ले रही हूँ। तो इसकी वजह से मुझे ये, आई डोंट वांट टू सेट दिस एज एन एग्जांपल, रेप में बेल मिलना ही नहीं चाहिए। अभी इसके कॉन्सिक्वेंसेज, भाई फेक केसेस जो होते हैं, एवरीबडी नोज कि उसमें लड़का पीछे जा रहा है, बट जो है वो है। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दैट एक्ट हैज टू बी पनिशेबल बाय द स्टेट। और आखिरी जो है वो फीचर, अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है क्रिमिनल इंटेंशन और नेग्लिजेंस। क्रिमिनल इंटेंशन और नेग्लिजेंस कि भाई आपका इंटेंशन ही है, मतलब मेंस रिया, एक्टस रिया आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, उसमें मेंस रिया मतलब आपका गिल्टी माइंडसेट है, आपका माइंड ही गिल्टी है, आपका इंटेंशन ही गलत था स्टार्टिंग से ही, आपको ये गलत ही करना था। तो ये सारे मतलब क्या क्या, सबसे पहला क्या फीचर है, ह्यूमन कंडक्ट। सेकंड क्या है, इट हैज टू बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तीसरा क्या है, पब्लिक रॉन्ग। चौथा क्या है, इट हैज टू बी पनिशेबल बाय द स्टेट। और आखिरी क्या है, क्रिमिनल इंटेंशन और नेग्लिजेंस। समझे? ये सारे उसके फीचर्स हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन अ क्राइम एंड अ सिविल रॉन्ग, या उसको हम टॉर्ट कहते हैं। आपने टॉर्ट पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, करेक्ट? इट इज अ सिविल रॉन्ग, राइट? तो क्राइम में और सिविल रॉन्ग में फर्क क्या होता है? क्राइम जो होता है, ये जनरलाइज है, कोई एक्सेप्शंस होते हैं, पर ये जनरलाइज डिफरेंशिएशन है, वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं कर सकते। जो क्राइम होता है, क्राइम इज नॉर्मली अ रॉन्ग विच इज कमिटेड अगेंस्ट द सोसाइटी, एंड अ सिविल रॉन्ग इज कमिटेड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल, ये सबसे पहला डिफरेंस है, सोसाइटी, इंडिविजुअल। ठीक है, दिस इज क्राइम, दिस इज सिविल रॉन्ग। सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि क्राइम में स्टेट प्रोसिक्यूट्स द ऑफेंडर। स्टेट जो होता है, सरकार, जो जुडिशरी के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील होता है, विक्टिम को खुद से कोई एडवोकेट हायर करने की जरूरत नहीं होती। वो बंदा या वो बंदी को स्टेट ही एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही प्रूव करने की कोशिश करेगा कि आपके साथ गलत हुआ। समझ में आया? इन अ क्रिमिनल केस यू डोंट हैव टू गो टू एन एडवोकेट, यू हैव टू गो टू द पुलिस एफआईआर लिखेगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, चार्जशीट फाइल होगी कोर्ट में, और चार्जशीट फाइल होने के बाद वो इट विल बी हैंडेड ओवर टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो केस चलाएगा, वो लड़ेगा केस। और जो डिफेंडर है, जो डिफेंस में है, अगर वो प्लीड गिल्टी करता है, हाँ भाई मैंने करा है, तो अपोजिशन लॉयर की जरूरत ही नहीं है, बट वो बोलता है नहीं सर मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट पर्टिकुलर जो पर्सन जो इसके खिलाफ अपने कंप्लेंट किए, उसको अपना खुद का एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं मिलता। लीगल एड हायर कर सकता है अगर उसके पास पैसे नहीं है। अगर उसके पास पैसे तो ऑब्वियसली विल गो टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सो दैट ही गेट्स प्रोटेक्टेड एंड ही गेट्स रिलीज एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ क्राइम हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, उसमें देखा हमने ह्यूमन कंडक्ट, प्रोहिबिटेड बाय लॉ एक्सेट्रा। एलिमेंट्स क्या है, क्या क्या है एलिमेंट्स? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक्टस रियस। एक्टस रियस मीन्स गिल्टी एक्ट, आपको एक्ट करना पड़ेगा जो गलत है, विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। एंड सेकेंड इज मेंस रिया। एक्टस रियस की स्पेलिंग है ACTUS REUS, और मेंस रिया की स्पेलिंग है MENS रिया REA। ये है मेंस रिया, मतलब गिल्टी माइंड जो मैंने आपको बताया।
एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेन सिट रिया करके एक मैगजीम है। क्या? एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंस सिट रिया, इसका एक ये लैटिन मैगजीम है। इसका मतलब ये है एक्ट डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस द माइंड इज ऑल्सो गिल्टी। कई बार ऐसा होता है, देखो कोई एक्ट गिल्टी आप कुछ अच्छे इंटेंशन से करना चाहते हो फिर गलत हो जाता है। जैसे कि आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने देखा होगा कि एक सोल्जर के साथ शादी हुई, उसके बाद उनकी शादी तय हो गई, एंगेजमेंट हो गया, सब हो गया, एंड दैट पर्सन गॉट किल्ड इन द बॉर्डर। तो जो विडो होती है उसको 25 लाख रुपए दिए गए। शादी मतलब कंज्यूमेट ही नहीं हुई, बट ऑन रिकॉर्ड भैया एंगेजमेंट हो गई। तो वो लड़की ने क्या करा, वो 25 लाख रुपए लेके वो चली गई। अब इसके जो बूढ़े माँ बाप हैं, एकलौता बेटा था उनका, वो बूढ़े माँ बाप बोले भाई मेरा बेटा भी नहीं, सहारा भी नहीं, मैं तो भाई रिटायर्ड आदमी हूँ, अब मेरा घर कैसे चलेगा। तो भाई आपका इंटेंशन तो सही था, वो पॉलिसी जब आपने बनाई इंटेंशन तो सही था, लेकिन गड़बड़, समझे। तो ये ऐसा होता है। तो आप कई बार कुछ अच्छे इंटेंशन से करने जाते हो लेकिन आगे जाके वो गलती हो जाती है। बट एनी एक्ट विल नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज गिल्टी अनलेस अनटिल यू आल्सो हैव अ गिल्टी माइंड। ओके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जहाँ पे गिल्टी माइंड नहीं होता है। मतलब व्हाट हैपेंस इज दैट यू आर जस्ट वॉकिंग ऑन योर रोड, आप अपना अपना काम कर रहे हो एंड सडनली समबडी प्रोवोक्स यू। कोई गाली गलौज कर रहा है आपको, कोई आपके ऊपर बिना वजह आपको फिजिकल आपको मार रहा है, ये कर रहा है, तो आपने उसको मारना चालू किया। तो आपका गिल्टी माइंड था ही नहीं, आपका कोई प्लानिंग नहीं था, कोई प्रिपरेशन नहीं था, वो जस्ट आउट ऑफ दैट इंसिडेंट हैपेंड, आउट ऑफ आउटरेज, इमोशनल आउटरेज, आपने वो उसको मार दिया। तो उसके लिए भी अलग लॉज हैं, वो मर्डर नहीं कहलाएगा, इट विल बी कल्पेबल हो सकता। तो उसकी पनिशमेंट, गलती तो हुई है, उसकी पनिशमेंट लेकिन कम है। तो ये फर्क हमें स्टडी करना है। ओनली अ पर्सन कैन कमिट अ क्राइम, ओनली अ पर्सन। अभी लीगल पर्सन का डेफिनेशन बड़ा है, नहीं सिटीजन तो आता, सिटीजन इज अ टाइप ऑफ पर्सन ओनली। कोई फॉरेनर भी हो सकता है हु इज नॉट द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, उसने अगर कमिट की क्राइम तो उसको सजा होगी ना। इंडिया में अगर वो मर्डर करता है, रेप करता है, किडनैपिंग करता है तो उसको सजा होगी। ड्रग्स बेच रहा है, होगी कि नहीं। सो एनी ह्यूमन, एनी पर्सन डिफाइंड बाय लॉ। ओके, तो इसमें कॉर्पोरेशंस भी आ गए, लीगल पर्सन होता है कॉर्पोरेट्स की, जो जैसे फॉर एग्जांपल वो उनके वजह से लोग मारे गए, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी जिसमें यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन का गैस लीक हो गया, लोग मर गए, उनको कंपनसेशन फाइन तो लगनी, कौन रिस्पॉन्सिबल था इसके लिए, कौन मैनेजर कौन था मेंटेनेंस, कौन देख रहा था, उस पर्सन को सजा तो होनी चाहिए नेग्लिजेंस की वजह से, है ना। तो ये चीज़ें कोई भी पर्सन डिफाइंड बाय लॉ नॉट बाय नेचुरल ह्यूमन बीइंग तो है ही, लेकिन बाकी के भी पर्सन, लीगल पर्सन होते हैं, कंपनी, कॉर्पोरेट बॉडीज, ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप्स, वो भी इसके अंदर कंसिडर किए जाएंगे। तो कंपनी को भी आप प्रोसिक्यूट कर सकते हो, एनिमल को नहीं, रोबोट को नहीं, मशीन को नहीं। अभी फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हुई है, आपका हाथ चला गया, आपका हाथ कट गया, तो कंपनी उसको कंपनसेशन देगी, कंपनी उसको, और कंपनी जेल में नहीं जाएगी कि भाई तू काम कर रहा था, गलती से तेरा हाथ उस मशीन में चला गया और तू मर गया या तेरा हाथ कट गया, है ना। तो उसमें पनिशमेंट नहीं होगी। तो एनिमल को आप पनिश नहीं कर सकते। कोई शेर ने आपका खून कर दिया, मतलब आपको खा लिया, तो शेर को आप जेल में नहीं डाल सकते, ठीक है। तो दैट इज नॉट अ क्राइम, एनिमल के खिलाफ नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, लेकिन कई बार सिर्फ जैसे मैंने बोला मेंस रिया भी इंपॉर्टेंट है, आपका गिल्टी माइंडसेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ लाइक रेकलेसनेस, नेग्लिजेंस, डिसऑनेस्टी, फ्रॉड, ये सारी चीजें आपको पता होने के बाद भी आप अगले इंसान को बेवकूफ बना रहे हो। फ्रॉड मतलब क्या, पता भी था फिर भी आपने उस चीज छुपाई और उस इंसान को बेवकूफ बनाया, पैसे खा लिए, भाग गए। ओके, तो ये सारे सिचुएशंस में मेंस रिया भी इंपॉर्टेंट, बट सिर्फ गिल्टी माइंड, सिर्फ हम, क्योंकि हम कभी कभी नेगेटिव सोचते हैं, दैट इज नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस। गलत सोचना ऑफेंस नहीं, वरना सारे लोग जेल में होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने लाइफ में हमने कभी ना कभी गलत सोचा है किसी इंसान के बारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में कि भाई इसको उड़ा दो या इसको मार दो, हमने सोचा है कभी ना कभी। तो हर कोई ऐसा होता तो हर कोई जेल में चला जाता। तो सिर्फ गिल्टी माइंड इंपॉर्टेंट नहीं है, गिल्टी माइंड के साथ एक्शन भी इंपॉर्टेंट है। समथिंग हैज टू फॉलो दैट गिल्टी माइंड, अनलेस एंड अनटिल एटलीस्ट प्रिपरेशन तो चाहिए, ठीक है। और आपका गिल्टी माइंड और आपका गिल्टी एक्ट, इन दोनों में कंकरेंस चाहिए।
इन दोनों में कंकरेंस चाहिए एक दूसरे को। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इनको मारना है तो मैंने इनके ऊपर चाकू चलाया, लेकिन गलती से ये मर गए। अरे मुझे उनको मारना था पर ये मर गए। सो नाउ दिस इज इंटेंशन तो है, लेकिन एक्शन किसी और पे हो गई कि मैंने जहर डाला कि चलो मनीष को जहर पिलाएंगे, और समीक्षा ने ओ समीक्षा खा गई और मर गई। तो इसमें क्या तो इसमें गड़बड़ ऐसी है कि वो प्रूव करना, ये करना, क्योंकि पुलिस वाले क्या देखेंगे कि आदित्य सर ने समीक्षा को क्यों मारा, तो कोई लिंकिंग ही नहीं हो रही है। मनीष के साथ कुछ तो खुन्नस थी या कुछ तो रीजन था, बिकॉज देयर हैज टू बी सम मोटिव। तो किसी का जब मैं मर्डर करता हूं तो मुझे एक तो फायदा हो रहा है या रिवेंज कुछ तो है। इधर यार समीक्षा तो यार सर प्रूफ हो गया तो पनिशमेंट होगी पनिशमेंट होगी, 100% पनिशमेंट होगी। इवन वो आप पढ़ेंगे कि एक्सीडेंटली अगर कोई दूसरा आदमी मर जाता है तो कब होती है और कब नहीं होती, ये भी पढ़ेंगे। जिंदा है तो वो ग्रीवियस हर्ट होगा, फिर वो मर्डर अटेम्प्ट टू मर्डर होगा, सजा कम होगी। उस इंसान को इंजरी होनी चाहिए। इंजरी मतलब क्या, फिजिकल इंजरी एक टाइप होती है। हम जब इंजरी बोलते हैं तो आपको क्या लगता है, इट इज फिजिकल इंजरी, बट इट कैन बी मेंटल, इट कैन बी रेपुटेशनल, इट कैन बी प्रॉपर्टी। क्राइम है, डिफेमेशन क्राइम है। इंजरी के टाइप्स होते हैं। इंजरी में बॉडीली इंजरी, मेंटल हार्म, रेपुटेशनल हार्म एंड प्रॉपर्टी की आपकी गाड़ी, आपका जमीन, आपका क्रॉप्स को बर्बाद कर दिया, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ क्राइम।